welcome you all, the attendees from different various educational institutions, school, colleges, and universities who have taken their valuable time and spare their time for this evening and inshallah the forthcoming project, the project through which we are engaged, that is the National Talent Search Examination. Just for a gist, today we are meeting for a briefing and engagement with educational centers, educational institutions who have and who are going to cooperate, support, collaborate with us on National Talent Search Examination, to be organized by Association of Muslim Professionals, an NGO which started back in 2007 and has been working for last 15 years in the field of education, employment, and empowerment across India, from Jammu Kashmir till Kerala, from Assam to Gujarat, Alhamdulillah. And we have been doing all this with collaboration of very valuable members like you all. And Alhamdulillah, we have been reaching very far corners to to towns, cities, and villages through educational institutions and through NGOs who have been collaborating with us on different projects. Today, we are meeting especially for National Talent Search Examination. We would like to brief you gist of National Talent Search, which is a very prime annual project of Association of Muslim Professionals. And we have been organizing this for last 3 years, alhamdulillah, in which we have been doing this through online mode, through our mobile app. Initially started as Champion, now it is updated and upgraded to AMP World mobile app found on the Google Play Store. We hope that by now your mobile has this app already installed and registered. Now, as far as National Talent Search Exam is concerned, this competition is with intention to promote and support students and potential talented students for their awareness, for their competitive skills, for their knowledge, so they can prepare themselves, so we can support them and teachers can groom them in order to compete other examinations which are beyond their campuses, school campuses and college campuses. This is to raise the competition bar. This is to raise the awareness of competition, which is inside the campus and outside the campus. Now, coming to the exam, the precise information is that the exam we are proposing, we have announced for 25th of November, 2023. The exam will be conducted on 25th of November, 2023. And it will be at 11 a.m. And it will be happening, inshallah ta'ala, online as well as offline. Online, it will be through AMP World mobile app. And offline, it will be through your education institution, like 250 cities and 300 exam centers, alhamdulillah, inshallah. Now, as far as the paper is concerned, it is a 90-minute duration, 100 questions, multiple choice questions, and it is through OMR sheet when it is being done on a physical paper mode examination at examination center like yours, education institution. And if online, it is through mobile app. The registration is open now, and the registration has been launched on 8th of October, alhamdulillah, by our President Amir Idrisi Saab and dignitaries in Ahmedabad. And the registration of students as an examinee will be completed by 20 November. The students can complete their registration by 20 November. During the registration on the AMP World mobile app, they have to make choices. They have to feed their data, like name and father's name, other things. And plus they have to make choices whether they are going to write the exam in online. If the exam center for the physical exam is not in a reachable area or a district, then they can go for online exam. If they want to do an offline exam, they can choose the exam center and take a print of the registration and go to that particular exam center on 25th, produce their printout and write the exam, inshallah ta'ala. As I told you, this is a physical exam and online exam both. The prizes are in 3 categories. The exam is in 3 categories. Class 8, 9, 10 is one category.
11, 12 is second category, and university bachelor degree undergraduates and diploma are third category. The madrasa student, the NIUS student, Polytechnic, ITI can go for their respective categories, inshallah, while they are registering, inshallah. The awards are also in three different categories. Like in each category, there'll be a cash prize for the first position in each category is 30,000. For second position will get 20,000 cash in each category. Third position will get 10,000 cash in each category. Position 4th to position 10, they will get 2,000 each. Position 11 to position 50 in each category, they will get 1,000, and the state topper will get 1,000. This is for the students, the examinees who will be on the merit list. The second thing for the students will be, inshallah, we do have very great training centers, training partners who are already making their achievements in preparing students for various competitive examination across the country, and they are preparing students for NEET, JEE, CDS, NDA, CAT, CLAT, UPSC, and like these competitive examinations. So they have allocated some seats, alhamdulillah. For as of now, we count more than 1,200 seats are going up. So those meritorious students will be mapped to them, and they will get scholarship seats to prepare for registration only. Once they make the merit list, they will be training partners, inshallah, on a scholarship for 100% tuition fees of or 75% per their merit, inshallah. Now coming to the third prize in the this category is that in each category we'll be looking for meritorious students who are needy and deserving. For 200 students who will be getting 10,000 scholarship to each student, inshallah ta'ala, through our platform, crowdfunding platform, which is known as indiazakat.com, inshallah ta'ala. E-certificates are for all and every successful participant who will be writing the examination, whether it is online or offline. Now, this for more details on examination centers, we would like to invite our founder and president, Mr. Amir Idrisi Saab, who is a software engineer by education, a businessman by profession, and a social worker by passion. You might have seen AMP India, and this is his thought process and his friend's thought process, which came up in 2007. And alhamdulillah, mashallah, he has been delivering the results throughout India by his efforts, by his hard work, and the team. So we would like to invite our founder and president from Association of Muslim Professionals, Mr. Amir Idrisi Saab, for his talk on exam centers, inshallah. Welcome, Amir bhai. Thank you, Faisal bhai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. सबसे पहले तो आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने आज की इस मीटिंग को ज्वाइन किया, और दूसरा शुक्रिया इस बात का कि आप लोग और आपकी इंस्टीट्यूशन जो है वो AMP नेशनल टैलेंट सर्च के लिए एज एन एग्जाम सेंटर आपने हमारे साथ पार्टनर किया, और एग्जाम सेंटर बनने के लिए आपने एक अपना कंसेंट दिया। उसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये जो AMP NTS हो रहा है, जो नेशनल टैलेंट सर्च का जो ये कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने फैसल भाई के जरिए उसकी डिटेल्स सुनी। माशाल्लाह, इट इज वेरी ह्यूज, इट इज काइंड ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट सर्च ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया। इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का कोई कंपटीशन मेरी नॉलेज के हिसाब से तो कम्युनिटी में पूरे मुल्क भर में नहीं होता, जो हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। और इस कंपटीशन का जो सबसे इंटीग्रल पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो मुझे लगता है वो हमारे एग्जाम सेंटर्स हैं। ये जो इस पूरे कंपटीशन की तैयारी पिछले 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं। अभी पिछले संडे को इसको हमने अनाउंस किया है, अक्टूबर 8 को अहमदाबाद में। अब आने वाले तकरीबन 35 to 40 डेज जो हैं उसमें स्टूडेंट्स रजिस्टर करते रहेंगे। फाइनली ऑन 25 ऑफ नवंबर ये एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस दौरान एग्जाम सेंटर्स शायद बहुत आखिर में उनका रोल दिखाई देगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, वो हमारे एग्जाम सेंटर्स की है, आप लोगों की है। इसलिए हमने तय किया कि जो सबसे पहले एक्टिविटी पूरी होनी चाहिए वो एग्जाम सेंटर्स को फाइनल करने की होनी चाहिए। हमने ये पूरा काम जो है तकरीबन 1 महीने पहले शुरू कर दिया था, जिसमें हमारे तमाम AMP के स्टेट हेड्स, AMP की चैप्टर टीम्स और जो AMP की ऑफिस टीम है,
अंडर द लीडरशिप ऑफ आसिया इमाम। इन तमाम लोगों ने जो है माशाल्लाह बहुत मेहनत की और तकरीबन ऑलरेडी 300 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स फाइनल हो चुके हैं और तकरीबन 220 डिस्ट्रिक्ट्स के में ये एग्जाम सेंटर्स फाइनल हुए हैं। हम लोगों की तैयारी ये है कि तकरीबन तकरीबन 300 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह। हमने पब्लिकली तो 250 डिस्ट्रिक्ट्स ही कहा है, लेकिन शायद इस पूरे प्रोसेस में आने वाले कुछ दिनों में तकरीबन तकरीबन 300 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगी और नंबर ऑफ सेंटर्स जो है वो 350 से ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि हर वो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली जहां पर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको कवर किया जाए। हर वो स्टेट जहां पर मुस्लिम सिग्निफिकेंट तादाद में रहते हैं, वहां के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स बनाए जाए। ये कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत सारे सेंटर्स हमने ऑलरेडी बना लिए, मेजॉरिटी ऑफ देम वी हैव ऑलरेडी मेड माशाल्लाह। कुछ बचे हुए हैं सेंटर्स, तो वो हम फाइनल कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह आने वाले एक हफ्ते में वो सारे सेंटर्स भी फाइनल हो जाएंगे। इसमें हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग भी जो बची हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अपने कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं, तो आप जरूर बताइए हमारी ऑफिस टीम से। तो आप बताइए जो लोग भी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं उनको हेल्प करिए, ताकि हम बची हुई डिस्ट्रिक्ट्स को भी जल्द से जल्द पूरा कर सकें। आज की ये जो मीटिंग ओरिएंटेशन की रखी गई है, उसका खास मकसद ये है कि ये पूरा एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट किया जाए और इसकी जो फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट डिटेल्स है वो आपको कैसे बताई जाए, इस मकसद के लिए रखी गई है। हम ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो आप लोग जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आप इस तरह का एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट करते रहते हैं हमेशा और आपको सब लोगों को एक्सपीरियंस है इस तरह के प्रोग्राम को कंडक्ट करने का। लेकिन फिर भी जो डिटेल्स हमने यहाँ पर बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं, उसको डिस्कस करने के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने वो सारी चीजें पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए, इसको मजीद अगर बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप सब लोग बिल्कुल बगैर किसी हिचकिचाहट के आप लोग हम लोगों को वो सजेशंस दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है, आमतौर पे लोगों को कंफ्यूजन है। हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन कनेक्ट का फॉर्म बनाया है जो इंस्टीट्यूशन उसको फिल करती हैं, और उसमें लोगों को पूछा है कि आप हमारा एग्जाम सेंटर बनना चाहते हैं या नहीं, और उससे भी हम लोगों ने बहुत सारा डेटा लिया है। तो लोगों को लगता है कि वही एक फॉर्म भरना है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। दैट इज बेसिक पार्टिसिपेशन फॉर्म, कि आपके स्कूल कॉलेज के बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, ये उसका फॉर्म है इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन का। जब आप हमारी बात इस बात कंफर्म हो जाती है, जब हमारे लोग बात कर लेते हैं कि आप एग्जाम सेंटर बनने वाले हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक नया गूगल फॉर्म जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे एग्जाम सेंटर्स वो गूगल फॉर्म भर दें, सो दैट सेंटर की जो बेसिक डिटेल्स है वो हमारे पास अवेलेबल हो। बेसिक डिटेल्स में हम ये चाहते हैं कि सेंटर का प्रॉपर नाम हमारे पास हो, जो स्कूल कॉलेज है उसका प्रॉपर नाम हो। जिस तरह से आप अपने बोर्ड्स पर, अपने डॉक्यूमेंट्स पर नाम लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से नाम आप गूगल फॉर्म में लिखकर भेजें। आमतौर पर जो सेंटर्स के लोग हैं, कई बार उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, कई बार वो प्रॉपर केस में नहीं लिखते, कई बार उसमें प्रॉपर नाम लिखते, कहीं पर लोग एड्रेस लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो आपका सब प्रॉपर नेम है स्कूल कॉलेज का वो लिखें, उसमें एक प्रॉपर एड्रेस लिखकर भेजें, एकदम बिल्कुल इजीली जो आइडेंटिफाई किया जा सके, और एक अननोन बच्चा भी आपके इस एड्रेस तक पहुंच सके, वो आप उसमें लिखकर देकर देने की कोशिश करें। तीसरी अहम बात जो उस गूगल फॉर्म में हम आप लोगों से मांग रहे हैं, वो गूगल मैप लिंक है। आपके इंस्टीट्यूशन का जो गूगल लिंक है, गूगल मैप लिंक है, वो आप हमको उसमें दें, सो दैट जब हम बच्चों को ये डिटेल्स शेयर करेंगे, जब ये उसको पब्लिक करेंगे, तो ये चीजें बहुत ही कारआमद होंगी। उसके अलावा हम इसमें जो हमारे प्रिंसिपल हजरात हैं इन सेंटर्स के, इन इंस्टीट्यूशन के, उनका नाम, नंबर और डिटेल्स मांग रहे हैं, सो दैट वी हैव कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ताकि कभी किसी जरूरत से अगर उनसे कोई कॉन्टैक्ट करना पड़े तो हम कर सकें। उसके अलावा हम लोग इंस्टीट्यूशन का बैंक डिटेल्स भी मांग रहे हैं, कि ताकि जो कुछ एक्सपेंस होने वाले हैं थोड़े से, जो हम रीइंबर्स चाहते हैं, वो जब पोस्ट एग्जामिनेशन उसको रीइंबर्स करें, तो आपकी बैंक डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद हों। ये कुछ चीजें हम उस फॉर्म में पूछ रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस फॉर्म में पूछ रहे हैं, वो है इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स हम उस फॉर्म में आपसे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे एग्जाम सेंटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, वो होगा सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द एग्जाम सेंटर। तो उस सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे उस स्कूल ने, इंस्टीट्यूशन ने, कॉलेज ने किसको अपॉइंट किया है, उसकी डिटेल्स उस फॉर्म में आपको भरनी है,
है ना, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर, उनका व्हाट्सएप वाला नंबर होना चाहिए। ये जो है हम चाहते हैं कि आप उसमें सबमिट करें। ठीक है। ये जो हमारे स्पॉक बनेंगे, उनको हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप सब लोग हैं, उसमें ऐड किया जाएगा। अभी से लेकर आखिर तक हम सब लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहना है। हम मैक्सिमम कम्युनिकेशन उसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप लोगों से करने वाले हैं। ठीक है। ये जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ही जो है ना, ये पूरे एग्जामिनेशन का हमारे नजरिए से हेड होगा, इंचार्ज होगा उस एग्जाम सेंटर में। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे स्पॉक को इस बात की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, या अगर आपके स्पॉक्स नहीं है इस मीटिंग में तो आप उनको ये बताइए कि ये स्पॉक होंगे जिनकी सारी जिम्मेदारी होगी। ये स्पॉक होंगे जो एग्जाम पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स को, आंसर पेपर्स को कलेक्ट करेंगे, है ना। यही लोग होंगे जो इन्विजिलेटर्स को अपॉइंट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसकी डिटेल हम उस गूगल फॉर्म में मांग रहे हैं। आप लोग प्लीज उस गूगल फॉर्म को भरिए। उसके अलावा स्पॉक की एक बहुत अहम जिम्मेदारी होगी कि उनको हर ओरिएंटेशन सेशन जैसे आज हम कर रहे हैं उसको अटेंड करना होगा। ये जो आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, दिस इज इनिशियल मीटिंग टू गिव यू बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जब आगे जैसे जैसे मरहला आगे बढ़ता जाएगा, तो शायद हम लोग दोबारा से इसी तरह से ऑनलाइन मीटिंग करें। तो वो मीटिंग जो है, इट विल बी कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर स्पॉक्स टू अटेंड दैट ओरिएंटेशन सेशन। नंबर 1, स्पॉक की जिम्मेदारी होगी कि वो जितनी भी गाइडलाइंस इशू की जाती हैं इस एग्जाम के ताल्लुक से, इनिशियल डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें भी, या उसके बाद भी जब अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करना और उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे स्पॉक की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो है, स्पॉक ही होगा हमारा जो एक्चुअल डिसीजन मेकर होगा उस एग्जामिनेशन सेंटर पर। ही हैज टू टेक ऑल द डिसीजन। कोई केस, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिफिकल्टी आती है, कोई ऐसे सिचुएशन आती है कि जिसमें आपको वहां पर कुछ नई चीज डिसाइड करनी पड़े, तो हम जो है वो अथॉरिटी हमारी तरफ से स्पॉक को होगी, कीपिंग इन माइंड दैट ही इज द मेन पर्सन, ही इज द लीड पर्सन, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन ओवर देयर हु विल मैनेज दैट सिचुएशन। इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आए, लेकिन दैट विल बी हमारे जो स्पॉक है वो जो है उसके डिसीजन मेकर्स होंगे। हमारे स्पॉक की जिम्मेदारी होगी कि जो नॉर्मल, हम तो ये डिटेल्स एग्जामिनेशन गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या बेसिक बोर्ड एग्जाम की या किसी बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस इस पूरे हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसमें वो फॉलो की जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इंशाल्लाह, ताकि हम हमारे इस एग्जामिनेशन को मुल्क का एक सबसे बेहतरीन किस्म का एग्जाम इंशाल्लाह बना सके। उसके अलावा हमारे स्पॉक की जिम्मेदारी होगी कि वो जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, वो हमको मुहैया कराए, और उसकी अगर डिटेल्स हमने गूगल फॉर्म में मांगी है तो वो भी सबमिट करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्पॉक की जिम्मेदारी कि प्रॉपर इन्विजिलेटर्स का अरेंजमेंट करना, वो लोग जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे क्लासरूम्स में, उनको अरेंज करना। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है, क्लास प्रॉपर क्लास में आगे उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा, उसको अरेंज करना। उसके अलावा सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है, अगर फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी वाले, वाटर बॉय, क्लीनिंग बॉयज, तो ये उनको अरेंज करना। ठीक है, ये बेसिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमारे स्पॉक को या हमारी जो इंस्टीट्यूशन एज एन एग्जामिनेशन सेंटर रजिस्टर कर रही है, उनकी एडिशनल जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो जो है इस एग्जाम के लिए कोई एक ऑब्जर्वर भी बनाए, जो आपकी ही सिटी के किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीनियर एकेडमिशियन हो सकते हैं। मैं इस पर भी आगे बात करूंगा। तो ये बेसिक जिम्मेदारी है जो हमारे स्पॉक की और एग्जामिनेशन सेंटर की, जो हमने अभी आपको ये दिखाया। ये जो डॉक्यूमेंट में अभी आपको गाइडलाइंस का दिखा रहा हूँ, ये जो लिंक्स में बता रहा हूँ, ये भी आपके साथ दोबारा से हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है इस पूरे कंपटीशन में, वो ये है कि ये पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बच्चों को जो रजिस्टर करा रहे हैं हम लोग, इंस्टीट्यूशन को जो रजिस्टर करा रहे हैं, वो हम हमारे मोबाइल ऐप पे करा रहे हैं, एएमपी वर्ल्ड पर। सारा डेटा लाइव, डायनामिक, रियल टाइम बेसिस पे उसमें मौजूद होता है। वो डेटा देखने के लिए हम लोग जो है, हमारे पास एक डैशबोर्ड है, उसको आप एडमिन डैशबोर्ड कह सकते हैं, जिसको हम एज एएमपी के बिहाफ पे हम एक्सेस करते हैं, और रियल टाइम बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है कि कितने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, कहाँ से रजिस्टर कर रहे हैं, किस कैटेगरी में रजिस्टर कर रहे हैं। हम इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको भी मुहैया कराएंगे इंशाल्लाह। तो इस डैशबोर्ड की एक लिंक जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शेयर किया जाएगा आपके सेंटर के लिए। आप उस डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं
कि इस वक्त आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे रजिस्टर किए हैं, कितने किस किस कैटेगरी से रजिस्टर किया उन्होंने, उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह जो है आपके डैशबोर्ड लॉगिन में आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए दिखाई देगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसी डैशबोर्ड में आप जो है लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसी डैशबोर्ड में आपको फाइनली जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा उसके बाद अटेंडेंस शीट, एक्सपेंस शीट, सारी चीजें जो रेगुलर इंफॉर्मेशन है उसी डैशबोर्ड में इंशाल्लाह हम आपको अवेलेबल कराकर देंगे। तो ये एक चीज जो ऑनलाइन डैशबोर्ड का सेगमेंट है ये आपके साथ शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आगे बढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर क्लासरूम्स शुड बी अवेलेबल, ताकि बच्चे अगर जो इतना बड़ा एग्जाम, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम अटेंड करने जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर अरेंजमेंट्स हम प्रोवाइड करें, ये हमारे सेंटर की जिम्मेदारी है। उसमें सबसे अहम बात ये ख्याल रखनी है कि द एग्जाम रूम्स एंड द एंटायर कैंपस शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना है। इट शुड बी सेफ, सिक्योर एंड हाइजेनिक। इन बातों का हम लोगों को ख्याल रखना है इंशाल्लाह। उसके अलावा कोशिश करनी है कि हमारा हर एग्जाम सेंटर मिनिमम 100 बच्चों की कैपेसिटी वाला हो। अरेंजमेंट जो है मिनिमम 100 स्टूडेंट्स के लिए है और मैक्सिमम हमने 500 रखा है। हम किसी भी सेंटर पर 500 से ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स एलोकेट नहीं करेंगे। तो ये हमने ये क्वेश्चन भी पूछा है आपसे गूगल फॉर्म में कि आपकी कैपेसिटी कितने बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करने की है। तो 100 इज द मिनिमम नंबर एंड 500 इज द मैक्सिमम नंबर। ये आपको हम लोगों को बताना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको हॉल्स, क्लासरूम्स, टेबल्स एंड चेयर्स, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, रेस्ट रूम्स अवेलेबल हो, और उसमें खासतौर पर ये ध्यान हो कि लड़कियों के लिए अलहदा रेस्ट रूम्स मौजूद हो। ये मैंडेटरी चीजें हैं, है ना। रिफ्रेशमेंट्स मतलब पानी वगैरह का इंतजाम हो वहाँ प्रॉपर, अगर बच्चों को जरूरत हो, पार्टिसिपेंट्स को, इन्विजिलेटर्स को या ऑब्जर्वर्स को। ठीक है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड्स वहाँ लगे हो ताकि बच्चों को किसी चीज को ढूंढने और मालूमात हासिल करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना आए। ये इतनी चीजें जो है एज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर एग्जाम सेंटर के पास मौजूद होनी चाहिए। इसमें जो दूसरी चीज है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हर एग्जाम सेंटर पर एक बैनर होर्डिंग की शक्ल में या स्टैंडी बैनर की शक्ल में वो अभी से लग जाए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि दिस इज गोइंग टू बी एग्जाम सेंटर। और उस बैनर के जरिए जो है एक तरह से जो है इस पूरे कंपटीशन का प्रमोशन भी होगा। और आप जो ऐसा सेंटर आपने ज्वाइन किया है, ये आपके लिए भी एक रिकॉग्निशन होगा एक तरह से कि आप जो है इस नेशनल जो टैलेंट सर्च का कंपटीशन है उसमें आप एग्जाम सेंटर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये डिजाइन हम आपको भेजेंगे, आप उसको प्रिंट करके अपने यहाँ पर एंट्रेंस पर या प्रोमिनेंट लोकेशन पे लगाइए। उसका एक फोटोग्राफ हम लोगों को इंशाल्लाह भेज दीजिए। ये एक एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा जो एडिशनल नोटिस बोर्ड्स वगैरह लगते हैं, हाँ आज तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम डेज के जो साइनेज लगते हैं, भाई वॉशरूम का साइन है, क्लासरूम जाने का रास्ता, या इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड्स हैं या जो डिस्प्ले बैनर्स हैं वो भी आप वहां पर जरूर लगाइए। एडिशनल नोटिस बोर्ड्स वहां पर लिखे हुए हों इंशाल्लाह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे जो इंतजाम हम कर रहे हैं, ये जो आखिरी स्टूडेंट है, जो सबसे ऐसा समझिए कि जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उस बच्चे को भी समझ में आना चाहिए, उस लेवल के अरेंजमेंट्स हम लोगों को करने हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा हर सेंटर पर एक मोबाइल फोन की, हर सेंटर में मौजूद हर क्लासरूम के लिए एक अदद मोबाइल फोन की जरूरत होगी विद गुड इंटरनेट फैसिलिटी, ताकि हम उसको लाइव कवर कर सके और उसको उस पूरे एग्जाम के प्रोसेस को रिकॉर्ड कर सके। मैं आगे उस पर आपसे बात करूंगा। ये जो है एज इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को इन तमाम चीजों की जरूरत है इंशाल्लाह। ये एग्जाम सेंटर्स फाइनल करते वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ूं मैं, उसके पहले एक बात आप लोगों के जहन में रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा एग्जाम सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हो। एक डिस्ट्रिक्ट जो है, इंडिया में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम, जिसमें से तकरीबन 300 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे सेंटर्स बन रहे हैं। तो ये जो सेंटर्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होने चाहिए आइडियली, ताकि पूरी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे वहां पर आ सके। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लोग गांव की तरफ नहीं जाते, बल्कि गांव की तरफ से या इंटरनल जो पार्ट्स है डिस्ट्रिक्ट के वहां से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की तरफ आते हैं। तो आप कोशिश करें कि हमारा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हो। आप ये बताएं कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है कि नहीं है। अगर इन केस आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं है तो आप हमको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का भी कोई सेंटर सजेस्ट करिए। हम आपका सेंटर भी एज इट इज रखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश करें कुछ जगहों पर, मुझे शायद ऐसी इंफॉर्मेशन है, बहुत बहुत कम होंगे ऐसे, कि जहां शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर
हमारे सेंटर्स नहीं है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सेंटर बनाने में आप अपनी हमारी मदद करें इंशाल्लाह। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, एग्जाम टाइमिंग्स की बात करते हैं हम लोग की एग्जाम में टाइमिंग्स को कैसे जो है ना फॉलो किया जाएगा। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग जो है जो हॉल टिकट है और जो सेंटर एलोकेशन का काम है स्टूडेंट्स को, वो 10 नवंबर और उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। 10 नवंबर तक जितने बच्चे रजिस्टर करेंगे उन सबकी हॉल टिकट जो है वो 10 नवंबर को जनरेट करेंगे, 11 नवंबर को जनरेट करेंगे, और ये हॉल टिकट बच्चों को अपने अपने मोबाइल ऐप में दिखाई देगी। ठीक है, जो माई रजिस्ट्रेशन डिटेल टैब है उसमें हर बच्चे को अपने रजिस्ट्रेशन में उनकी अपनी उनका अपना हॉल टिकट दिखाई देगा। और उसके बाद जितने बच्चे रजिस्टर करते जाएंगे वो फिर हम लोग डायनामिक करेंगे। हमने इसलिए तय किया कि बच्चों को एग्जाम सेंटर ना बताया जाए, वरना लोग जो है ना सेल्फ सेंटर की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो इसलिए ये तय किया है कि वो सारा प्रोसेस 10 नवंबर के बाद होगा, और उसके बाद जो है रियल टाइम बेसिस पे सेंटर्स एलोकेट होते रहेंगे सभी लोगों को, और वो इन्फॉर्मेशन आपको भी डैशबोर्ड में दिखाई देगी कि आपके सेंटर पर कितने बच्चे अलोकेट हुए हैं, किस कैटेगरी के हुए हैं और किस जेंडर के हुए हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इंशाल्लाह वहां पर मौजूद होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जस्ट टू रिपीट कि एग्जाम विल बी ऑन 25 नवंबर सैटरडे इंशाल्लाह। उसके बाद जो एग्जाम है वो 1.5 घंटे का है, यानी 90 मिनट्स का। एग्जैक्ट 11 बजे एग्जाम शुरू होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। सो ये कीप दिस इन माइंड। इसमें हमने बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दी है, स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन में दी है कि आप एग्जाम सेंटर पर 9:30 बजे से पहले पहुंच जाए, यानी जो गेट क्लोजिंग का टाइम है कम से कम उससे 1 घंटे पहले। तो अगर बच्चे एग्जाम सेंटर पर 9:30 से पहले पहुंच रहे हैं तो एग्जाम सेंटर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो कम से कम 8:30 बजे से वहां पर मौजूद हों, ताकि बच्चे जब वहां पर आए तो वहां पर एग्जाम सेंटर्स के जिम्मेदार मौजूद हों। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है एंट्री स्टार्ट। हमने तय किया है कि 11 बजे का एग्जाम है, तो हम हॉल यानी कैंप यानी कि एग्जाम सेंटर के अंदर जो एंट्री है वो 10 बजे शुरू करेंगे, और लास्ट एंट्री जो एग्जामिनेशन हॉल की है वो 10:30 बजे तक होगी। इस आधे घंटे में हमने सारे बच्चों को अंदर लेना है, तो इसलिए आपको वैसे अरेंजमेंट करने होंगे कि जितने आपके स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बिगैर किसी परेशानी के आधे घंटे में अपने एग्जाम सेंटर में दाखिल हो जाए और अपने क्लासरूम तक पहुंच जाए और बैठ जाए। इसके लिए जितनी रिक्वायर्ड स्टाफ की जरूरत होगी वो आप लोगों को करनी है, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। उसके बाद जो है जब बच्चे 10:30 बजे एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे, उसके बाद ये जो 10:30 से 11:45 का टाइम है, यानी 10:30 से लेके 10:45 तक का जो टाइम है, इसमें हम लोगों को जो 2 इंपॉर्टेंट काम करना है एज एन एग्जाम सेंटर, कि जितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो बच्चों को देनी है। इन बच्चों में सीनियर कॉलेज और जूनियर कॉलेज के तो बच्चे होंगे ही, साथ में स्कूल्स के बच्चे 8, 9, 10th के। शायद उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट जो पहली बार इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जो पहली बार OMR शीट्स यूज कर रहे हैं। तो ये इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी होगी कि वो पूरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है प्रॉपरली बच्चों को बता दें कि ये पूरा एग्जामिनेशन कैसे देना है। ये हमारे बच्चे हैं, आमतौर पर बड़े शहरों में शायद लोगों को थोड़ा मालूम होती है, थोड़ी बहुत मालूमात होती है, लेकिन छोटे शहरों में इतनी मालूमात नहीं होती। हमको इन्हीं बच्चों को एनकरेज करके, इन्हीं बच्चों को मदद करके आगे ले जाना है इंशाल्लाह, जो इस पूरे कंपटीशन का मकसद है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन देने वाला जो पीरियड होगा 10, 10:30 से 11:15 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इन्विजिलेटर शुड ट्राई टू गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स कि व्हाट एग्जैक्टली ही हैज टू डू इन द एग्जाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी दौरान में हमारे जो इन्विजिलेटर को बच्चों का हॉल टिकट और आधार कार्ड भी चेक करना है इन 15 मिनट्स में इंशाल्लाह। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे आपको देता हूँ। उसके बाद हमने लिखा है कि 10:45 को हम बच्चों को OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जो हमारा आंसर शीट होगा वो 10:45 को दे दें, ताकि बच्चे 10:45 से 10:50 तक के दरमियान में जो है उसमें जो सारी डिटेल्स लिखनी है, उनको अपनी डिटेल्स लिखनी है, कुछ जो अपने अपना क्लास, अपनी कैटेगरी, अपना हॉल टिकट नंबर, अपना सेक्शन, किस अपना जो सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो बच्चे उतने देर में लिख लें, ताकि दे शुड बी रेडी बिफोर 11 टू गिव दी फाइनल एग्जाम इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एग्जैक्ट टाइम रखा है 10:55। every exam center should give exam papers, every invigilator should give exam paper exactly in 10:55 to all the students in their classrooms inshallah। ठीक है, उसके बाद जो है स्टार्टिंग टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 11 बजे, कंक्लूडिंग शार्प एट 12:30 को उनसे पेपर ले लेने हैं। दीज आर सम इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स विच वी हैव मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट। ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और शेयर किया गया है इंशाल्लाह।
इसमें इन्हीं सारे पॉइंट्स को कुछ एक्सप्लेन करके लिखा गया है कि एंट्री एग्जिट कैसे मेंटेन किया जाएगा। उसमें मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने बोलता हुआ चलूंगा, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे स्टूडेंट्स की फ्रिस्किंग बहुत जरूरी है, चेक करके ले जाया जाएगा। बच्चों के पास हॉल टिकट और आधार कार्ड और एक बॉल पॉइंट पेन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दे विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो वो चेक करके अंदर भेजने के लिए आपको इनफ स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड होगा एट एंट्री पॉइंट्स, ठीक है, ताकि प्रॉपर फ्रिस्किंग करके बच्चों को अंदर भेजा जा सके। इसमें एक खास बात का ध्यान रखें कि जो बच्चियां आएंगी, हमारी बेटियां आएंगी, उनको चेक करने के लिए लेडी स्टाफ ही होने चाहिए। इसमें कोई भी तरह के किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर आपके पास लेडी स्टाफ नहीं है तो यू विल हैव टू अरेंज लेडीज टू मैच दिस एंटायर प्रोसेस। ये बात की जो है हम लोगों को कोशिश करनी है। एंट्री गेट्स 10 बजे खुलेंगे, 10:30 बजे बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमने ऊपर लिखी थी वहीं पर उसी बातों को हमने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनीथिंग, बैग्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई इक्विपमेंट, कोई रिटर्न मटेरियल, किसी भी तरह की बुक, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, दे आर नॉट अलाउड टू कैरी एनीथिंग। ये हम स्टूडेंट्स को बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे कि ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको भी इसको नहीं अलाउ करना है इंशाल्लाह। कोई भी कैंडिडेट को 12:30 बजे से पहले क्लासरूम से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जो एंड टाइम है वो एंड टाइम को फॉलो करना है अनटिल एंड अनलेस इट इज सम मेडिकल इमरजेंसी। ओके, तो इन बातों का हम लोगों को ख्याल रखना है। एग्जिट जो है बच्चों का बहुत प्लान्ड मैनर में होना चाहिए। आप सब लोग माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन चूंकि ये बातें मेंशन की जानी चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं कि वो एग्जिट जो है वो कैंडिडेट्स का प्रॉपरली फेस्ड मैनर में मेंटेन किया जाए, ताकि वहां किसी किस्म की कोई दुश्वारी किसी बच्चे को नहीं आए इंशाल्लाह। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू एंटर द एग्जाम सेंटर। मैंने पहले कहा कि सिर्फ आधार कार्ड और हॉल टिकट ही जो है बच्चे कैरी कर सकते हैं विद देयर पेन, ठीक है, सिर्फ यही चीज रहेगी। आधार कार्ड का जो नंबर है उनका, वो हॉल टिकट पे जो आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है उससे मैच होना चाहिए। वी विल हैव टू मेक श्योर दिस, ठीक है। ऑनलाइन कॉपी ऑफ हॉल टिकट्स ये जो है माई रजिस्ट्रेशन डिटेल टैब में एएमपी वर्ल्ड में मौजूद होगी। इन बातों को आप सब लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए इंशाल्लाह। ये बच्चे A4 साइज में उस हॉल टिकट का प्रिंट लेकर आएंगे और अपना ओरिजिनल आधार कॉपी लेकर आएंगे। ये चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जाए, और बाद में उसकी मैचिंग जो है वो आप एग्जाम सेंटर में बैठकर कर सकते हैं जब आपके इन्विजिलेटर्स वहां पर मौजूद हों। सो दिस इज डन, दिस पॉइंट इज डन। अगला पॉइंट जो हमारे इन्विजिलेटर से रिलेटेड है तो वो ये है कि हमारे अवर जो स्पॉक है हमारे, दे शुड अपॉइंट नेसेसरी इन्विजिलेटर्स इन एडवांस, वेल इन एडवांस। उनकी डिटेल्स, नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट हम एक अलग शीट शेयर करेंगे, उसमें भरकर आप लोगों को हम लोगों को भेजनी है इंशाल्लाह। उसके अलावा जो है कोशिश ये करनी है कि एक 50 बच्चों के लिए इन जनरल ऑन एन एवरेज फॉर एवरी 50 स्टूडेंट्स देयर शुड बी वन इन्विजिलेटर। ऐसी कोशिश करें। तो जिस सेंटर की कैपेसिटी 500 की है, दे शुड ट्राई टू हैव 10 टीचर्स एज इन्विजिलेटर्स इंशाल्लाह, ठीक है। और ये सारे जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो हमारे जो स्पॉक हैं, जिनको हमने सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इंचार्ज बनाया है उसको, और हमारी जो सेंट्रल एनटीएस टीम है उनको जवाबदेह होंगे और उनको अकाउंटेबल होंगे। इस बात का उनको एहसास दिलाया जाए। इन्विजिलेटर्स की जिम्मेदारी है कि दे शुड फैसिलिटेट द इंटरैक्शन एंड सपोर्ट विद विद द स्पॉक, विद द स्कूल्स, with the students and with the observers which we are going to appoint, जिसमें एएमपी के ऑब्जर्वर्स हैं, लोकल एनजीओस के ऑब्जर्वर्स होंगे, टीचर्स होंगे सीनियर, हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो इतनी सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऑब्जर्वर हो सकते हैं। उनके साथ इंटरैक्ट करना, उनके साथ सपोर्ट करना, ये हमारे इन्विजिलेटर्स की इंशाल्लाह जिम्मेदारी होगी। उसके बाद हमारी एक रिक्वेस्ट होगी हमारे स्पॉक से कि वो कम से कम एक दिन पहले तमाम इन्विजिलेटर्स की एक मीटिंग कॉल करें और उनके साथ तमाम चीजें डिस्कस करें और उनको ऑल जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जो गाइडलाइंस है वो उनके साथ शेयर करें इंशाल्लाह। उसके अलावा हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर स्पॉक जो है हमारे इंचार्ज जो है या जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हेड हैं, वो लोग जो है इन क्लासरूम्स को विजिट करते रहे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, लाइक वी ऑलवेज डू विद अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी। जिस तरह मैंने कहा कि इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम हॉल टिकट्स को वेरीफाई करें और उनका आधार कार्ड जो है उसको मैच करें। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया कि जिसको आधार कार्ड नंबर को, उसके ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर को हॉल टिकट पे दिए हुए आधार कार्ड से मैच करना है। दिस मस्ट बी फॉलोड, है ना। ये अटेंडेंस में आपको जो अटेंडेंस फॉर्मेट दिया जाएगा उसमें आपको वेरीफाई पर टिक करना है कि वेरीफाइड।
ओके, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जो हमने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन ओएमआर शीट, टेकिंग अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, है ना, फॉलोइंग द टाइमलाइंस। और उसके बाद जो है आखिरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि रिपोर्ट द पेपर्स दे हैव रिसीव्ड। जितने पेपर्स दिए जाएंगे उसका फॉर्मेट हम आपको देंगे पेपर का, जितने पेपर रिसीव हुए, कितने यूज हुए, कितने रिटर्न किए गए, ये सारी चीजें इन्विजिलेटर को भरकर अपने स्पॉक के पास सबमिट करनी है। और फिर वो स्पॉक जो है वो इंफॉर्मेशन और वो डॉक्यूमेंट्स हमको हम सेंट्रल ऑफिस पर कुरियर करेंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज द पॉइंट। अब इसके इन्विजिलेटर्स के अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका हमने रखा है वो है ऑब्जर्वर्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को जो है ना, ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम एग्जाम सेंटर्स को ही रिक्वेस्ट करते हैं कि दे शुड मेक एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं आप, एटलीस्ट वन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट की किसी दूसरी स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको एज एन ऑब्जर्वर आप अपॉइंट करिए, उनकी डिटेल आप हमारे साथ भेजिए। ऑब्जर्वर का अलग से एक गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया जाएगा जिस पर आप वो डिटेल्स को सबमिट करिए इंशाल्लाह। उन ऑब्जर्वर्स को हम एक फॉर्मल लेटर, एक आईडी कार्ड डिजिटल फॉर्म में भेजेंगे इंशाल्लाह। और उन ऑब्जर्वर्स को इंशाल्लाह आफ्टर द एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी देंगे कि दे वर द ऑब्जर्वर्स ऑफ दिस नेशनल कंपटीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। इससे हम लोगों को एक एग्जाम को फेयर बनाने में, क्लीन बनाने में, ट्रांसपेरेंट बनाने में भी मदद मिलती है, प्लस लोगों को इन्वॉल्व करने में भी मदद मिलती है। इस पूरे प्रोग्राम को जो है ना एक कम्युनिटी ड्रिवन कंपटीशन बनाने में भी मदद मिलती है इंशाल्लाह। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ऑब्जर्वर्स बनाए जाए और इस पूरे प्रोग्राम, पूरे कंपटीशन को, पूरे एग्जाम को एक ऑफिशियली अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाए इंशाल्लाह। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ऑब्जर्वर्स बनाने की जिम्मेदारी है, एक आप बनाएंगे मिनिमम, और उसके अलावा हम लोकल एनजीओ में से किसी ना किसी को एज एन ऑब्जर्वर अपॉइंट करेंगे। हम टीचर्स एंड एकेडमिशियंस जो हमारे कांटेक्ट में, हमारी जो एएमपी प्रोफेसर्स कनेक्ट की टीम है, दे विल अपॉइंट वन ऑब्जर्वर। एएमपी एनजीओ कनेक्ट टीम विल अपॉइंट वन ऑब्जर्वर। हमारी जो एएमपी चैप्टर और स्टेट टीम है वो भी कोशिश करेगी कि वो भी एक ऑब्जर्वर उसमें अपॉइंट करे इंशाल्लाह। उसके अलावा आपने आपने जो ऑब्जर्वर बनाए वो एक, और उसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हमने कहा है कि आप किसी भी सेंटर पर कभी भी जा सकते हैं। जो ये पूरे कंपटीशन में स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे हैं, कम से कम 500 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है और कम से कम 1000 बच्चों को अलग अलग डिस्काउंटेड स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ये जो देने वाले हमारे 20 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये जो है, इनको हमने कहा है कि आप किसी भी सेंटर को विजिट करना चाहते हैं, यू आर फ्री। उनके पास एक लेटर होगा, उनके जो नुमाइंदे हैं उनके पास भी एक आईडी कार्ड होगा, दे कैन कम एनी टाइम। और बाकी सारे ऑब्जर्वर्स तो आपके साथ लिंक्ड होंगे पहले से, उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर होगी कि ये दीज पीपल विल बी अवेलेबल एज ऑब्जर्वर्स, एंड दीज ऑब्जर्वर्स विल नॉट ओनली ऑब्जर्व द एग्जामिनेशन बट दे विल बी काइंड ऑफ सपोर्ट टू यू। आपको मदद भी करेंगे इंशाल्लाह। हम उनको एज एन वॉलंटियर भी रखेंगे कि आपको इस एग्जाम को कंडक्ट करने में एग्जाम सेंटर की मदद करनी है इंशाल्लाह। सो दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग इसका ध्यान रखें। अगले पॉइंट के तौर पर यह है कि सीटिंग अरेंजमेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस कि वी शुड हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज द प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। अब चूंकि इस पूरे एग्जामिनेशन में 3 अलग अलग कैटेगरीज है, सीनियर कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, स्कूल स्टूडेंट्स। इसमें भी जो है स्कूल्स के लिए अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, तो वो पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर रहेगी। आपको अकॉर्डिंगली उनके लिए जो है सीटिंग अरेंजमेंट्स करनी है। इस बात का आपको भरपूर तरीके से ख्याल रखना है इंशाल्लाह। आगे अगर मैं बढ़ूं तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट्स कैसे दी जाएगी। तो उसकी बेसिक डिटेल ये मैंने बताया कि 3 अलग अलग कैटेगरीज है। सीनियर कैटेगरी में 4 सेट के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, ABCD 4 क्वेश्चन पेपर्स होंगे जो आप तक पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद जूनियर कैटेगरी जो है, जूनियर कॉलेज कैटेगरी यानी 11th एंड 12th, उसके 4 सेट्स होंगे ABCD। उसके बाद स्कूल जो है 8th 9th एंड 10th, इसमें 3 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली वी हैड केप्ट इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। हर लैंग्वेज के 2 सेट्स होंगे, सेट A एंड सेट B। ऐसे क्वेश्चन पेपर्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। अभी हम लोगों ने गुजरात के लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद, तमाम स्कूलों ने, वहां की एसोसिएशन ने भी हमको रिक्वेस्ट की कि वी शुड हैव गुजराती ऑल्सो एज द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन। हमने गुजराती को भी अलाउ किया है।
तो यानी गुजरात के लोगों के लिए खासतौर पर बोल रहा हूँ मैं ये बात, कि आपके पास 3 लैंग्वेज के अलावा चौथे लैंग्वेज के स्टूडेंट्स भी होंगे, गुजराती के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आपको गुजराती में भी 2 सेट होगा, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है। सो दिस ये जो है ना एग्जाम का पैटर्न है। अब जो क्वेश्चन पेपर और जो ओएमआर शीट है आपको एक प्रॉपरली सील्ड एनवलप में आप तक पहुंचाई जाएगी, सारे एग्जाम सेंटर्स तक। और ये काम जो है आप तक, ये एग्जाम पेपर्स पहुंचाने का काम जो है वो 22 नवंबर तक हो जाएगा। यानी लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग दिस क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट विल बी 22 नवंबर। ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह कि हम पूरे मुल्क में 22 नवंबर तक क्वेश्चन पेपर को पहुंचा दें। क्वेश्चन पेपर 3 अलग अलग तरीके से पहुंचाए जाएंगे। मैक्सिमम जगह पर हैंड डिलीवरी की जाएगी। आवर रिप्रेजेंटेटिव्स विल कम एंड दे विल डिस्पैच योर center question papers to you. That is one. Number two, we will send to few exam centers, हम कुरियर करेंगे, डायरेक्ट कुरियर आप तक पहुंचाया जाएगा, वो भी 22 तारीख से पहले अवेलेबल होगा। नंबर 3, बहुत रेयर कुछ लोकेशंस हैं, जैसे लद्दाख में अगर सेंटर है, मणिपुर में अगर सेंटर है, लक्षद्वीप में अगर सेंटर है, तो ऐसी कुछ जगहों के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन जो है क्वेश्चन पेपर्स इनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले उनको हमारे उसी डैशबोर्ड में अवेलेबल कराएंगे इंशाल्लाह, ताकि वो सिर्फ इतने देर पहले अवेलेबल कराएंगे जितनी देर में वो लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं। सो दिस एक आपको इसके बारे में बताना था। सरप्लस पेपर जो है वो सेंटर इंचार्ज के पास वापस कर दी जाने चाहिए। आंसर शीट ओएमआर शीट होगी, ठीक है। हर बच्चे को करेक्ट क्वेश्चन पेपर जो है उसके लैंग्वेज और उसके सेट के क्लास के हिसाब से मिलना चाहिए। वी विल हैव टू मेक श्योर दैट, ठीक है। प्रोसीजर फॉर ईज ट्रांसपेरेंसी एंड इश्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने पहले भी कहा कि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर समझाना कि यूज ऑफ ओएमआर शीट कैसे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जिम्मेदारी होगी, आप सब लोग इसमें ध्यान रखें। उनसे ये भी कहना कि क्वेश्चन पेपर के फ्रंट और बैक पे अपना नाम लिख दें, सो दैट अगेन एक 1 लेवल ऑफ फेयर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो हम लोग आमतौर पर करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, और इस दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि वाइल ओपनिंग द क्वेश्चन पेपर सील, वहां पर उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस लिए जाएं, और वो करते वक्त जो है एग्जाम सेंटर के सारे लोग, सारे इंचार्जेस, ऑब्जर्वर्स और कम से कम 2 स्टूडेंट्स को सामने रखा जाए, जो आमतौर पर चाहे सीबीएसई एग्जाम हो, आईसीएसई एग्जाम हो, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है उसको यहाँ भी हम लोग फॉलो करें इंशाल्लाह। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट्स। एक जो मैंने पहले कहा था कि हर क्लासरूम के लिए एक मोबाइल की जरूरत होगी, वो ये है कि हम इस पूरे एग्जाम को जो है ऑनलाइन जूम के जरिए कवर करेंगे, ताकि पूरा क्लासरूम जो है वो कवर हो सके। तो ब्लैक बोर्ड की तरफ मोबाइल फोन रख के पूरा क्लासरूम जिसमें दिखाई दे, उस वैसे वीडियो ऑन करके आपको हमारी दी गई जूम लिंक पर ज्वाइन करना होगा ड्यूरिंग द एग्जाम डे। ये जो जूम लिंक है ये हम आपको एग्जाम से बहुत पहले आप तक शेयर कर देंगे। तो अगर आपके पास 10 क्लासरूम्स हैं तो 10 अलग अलग लॉगिन से आपको जूम को ज्वाइन करना होगा। आपके पास सिर्फ 5 क्लासरूम्स है तो 5 अलग अलग जगह से आपको ज्वाइन करना होगा, ताकि ये अगेन 1 लेवल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इंशाल्लाह, जिसके जरिए हम सब लोग जो है बड़े मतलब पूरी ताकत के साथ और पूरे फख्र के साथ ये बोल सकेंगे कि एक बहुत शानदार लेवल का एग्जाम हम सब ने मिलकर कम्युनिटी लेवल पर खुद से इनको ऑर्गेनाइज किया है इंशाल्लाह। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ओरिएंटेशन। अगला पॉइंट अगर में जाऊं मैं तो वो है अटेंडेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा। आपको तमाम बच्चों की सिग्नेचर लेके वो अटेंडेंस रिपोर्ट भी हम लोगों को साथ में वापस भेजनी है। इस डॉक्यूमेंट के आखिरी 2 पॉइंट वो है कि डिस्पैचिंग ऑफ दी ओएमआर पैकेट्स। आपको एक कुरियर एनवलप भेजा जाएगा क्वेश्चन पेपर के साथ में, जिसमें रखकर आप ये ओएमआर शीट्स हम लोगों को भेजेंगे, साथ में अटेंडेंस रिपोर्ट भेजेंगे, है ना। और ये जो है हमारी जो बॉम्बे ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, हेड ऑफिस है एमपी की, उस पर ये सारे कुरियर्स आप लोगों को भेजने हैं। ओके। और उसको ओएमआर शीट्स को पैक करते वक्त भी आपके ऑब्जर्वर्स आपके पास मौजूद रहें और उसको प्रॉपर सील किया जाए। वो सील मटेरियल और सारी उससे रिलेटेड चीजें भी हम आपके साथ विद क्वेश्चन पेपर भेजेंगे इंशाल्लाह। सो जैसे बाकी सारे नेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हमें फॉलो करना है। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आखिरी पॉइंट है एक्सपेंसेस से रिलेटेड इस डॉक्यूमेंट में, वो ये है कि जो बैनर प्रिंट करने की हम बात कर रहे थे वो, और प्लस ये जो कुरियर चार्जेस होंगे आपके वो इंशाल्लाह उसको हम रिम्बर्स करेंगे। और जो है उस जो जिसके लिए हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स ली है, जो पूरा एक्सपेंस रिपोर्ट का भी एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें आप प्रॉपरली एक लेटर पे हैंड रिटन आप लिखकर उसी को
हमारे OMR शीट के साथ भेज सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें जो एक्सपेंसेस छोटे से हुए हैं वो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सारे एक्सपेंसेस तो कवर नहीं किए जा सकते, क्योंकि हम भी जो है कम्युनिटी सर्विस में है, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के ज़हीन और होनहार बच्चों को, तलबा को सिलेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो हम नहीं कर सकते, वो हम उम्मीद करेंगे कि आप भी एज अ पार्टनर, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, आप भी जो है उसमें मैक्सिमम जो है अपने तौर पर सपोर्ट करने की कोशिश करें। बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स ऐसे हो सकते हैं जो बच्चों के लिए थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ फैसिलिटीज भी अरेंज कर दें, अगर तो बहुत अच्छी बात है। नॉट मैंडेटरी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि आप अगर कुछ कर सकते होंगे तो जरूर करिएगा, ताकि उन बच्चों का हौसला बढ़े, उन बच्चों की हिम्मत बढ़े, और उन बच्चों में जज्बा मजीद परवान चढ़े कि वो इस तरह के कंपटीशन लगातार देते रहेंगे। और हमारी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, हम सब लोग इसी तरह उनको हौसला सपोर्ट करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, और उनके दस्ते शफकत जो होता है वो उनके सरों पर और कांधों पर हमेशा रखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये रही कुछ एग्जाम सेंटर से रिलेटेड बात। इसके अलावा भी मैं 3-4 पॉइंट्स और आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो बेसिकली इस कंपटीशन के प्रमोशन के लिए है। तो उसमें दोबारा से मैं वो बात आपसे कहूँ कि देखिए, ये जो है ना, इसका बहुत नेक मकसद के तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसका मकसद ये है कि पूरे मुल्क में कोई एक बच्चा जो है, अगर वो टैलेंटेड और ज़हीन है, तो पैसों की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से उसका एजुकेशन अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसका जो पोटेंशियल है उसके हाईएस्ट लेवल पर वो पहुंचना चाहिए। ये एज अ कम्युनिटी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम आखिरी बच्चे तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर मोहल्ले और गांव तक पहुंचे। इस पहुंचने में हमारी कोशिश, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत फजल किया हमारे साथ। हमको ऑलरेडी 600 डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन आता है, लेकिन हर 600 डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन आता है ऐसा नहीं है। ये होगा कब? जब हम सब लोग एक हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, हम सब लोग अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अगर अदा करेंगे इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कि हम लोग हर घर तक, हर टैलेंटेड बच्चे तक पहुंच पाएंगे। और वहां तक पहुंचे और उन्होंने अगर इस एग्जाम को पास किया, तो आप सब जानते हैं कितने बेनिफिट्स है। कितनी सारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर रेडी। ये जो 20 हमने मेंशन की है ऑर्गेनाइजेशन जो स्कॉलरशिप दे रही है, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट रेडी है, वो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करेंगे। खुद AMP इंशाल्लाह कमिटेड है कि इन बच्चों के साथ लगातार काम करेगी, सिर्फ एक एग्जाम तक नहीं, बल्कि इनको हमेशा अपने साथ कनेक्ट रखेगी, हमारे AMP वर्ल्ड मोबाइल ऐप के जरिए, हमारी इंफॉर्मेशन टीम के जरिए इंशाल्लाह। तो ये सब ताकि उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए जरूरी है कि वो रीच आउट, एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट करा जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नंबर 1, कि जो हमने कहा है कि बैनर होर्डिंग आप अपने इंस्टीट्यूट पे लगाएं, वो नंबर 1 वहां से शुरू करें। नंबर 2, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, और उनको ये NTS की डिटेल्स समझाएं, उनको बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों उनको अपने अपने बच्चों को इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उनको एनकरेज करें। ये दूसरा पॉइंट होगा कि आप लोग एक मीटिंग जो है स्कूल्स और कॉलेजेस की लगाएं इंशाल्लाह। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि आप हमारे साथ जितनी आपके यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस हैं, उसके ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, अगर इस तरह की कोई लिस्ट विद फोन नंबर अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो जरूर करिए। हम इंशाल्लाह सेंट्रली उनको कांटेक्ट करने की अपने तौर पर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आएगी तो हम यहाँ से जो कुछ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में, वो हम आप लोगों तक, उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो प्लीज शेयर द लिस्ट ऑफ managers, owners, principals, and teachers of the schools and colleges in your district. This is the point number 2. Point number 3 था exactly. Point number 4 ये है कि हम चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, उलमा हैं, है ना, अगर NGOs को आप जानते हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, तो उनकी भी डिटेल अगर आप हमको शेयर कर सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, तो प्लीज बराए मेहरबानी जरूर करें। हम चाहते हैं कि ये पूरा इनिशिएटिव, ये जो पूरा कंपटीशन है, ये कोई AMP का कंपटीशन नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कंपटीशन जो है कम्युनिटी का कंपटीशन बन जाए। ये कंपटीशन जो है, ये नेशनल टैलेंट सर्च है, ये साल दर साल की इसी तरह की मेहनत से ये हो जाए कि ये गेट पास हो जाए पूरी उम्मत के लिए, ताकि उम्मत में किसी भी बच्चे को, पूरे मुल्क में अगर किसी भी बच्चे को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, तो उसको मालूम है कि वी हैव नेशनल टैलेंट सर्च थ्रू विच वी कैन गेट ऑल दो सपोर्ट फ्रॉम एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सिर्फ हम मदद नहीं करेंगे, अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया हम सब लोगों ने मिलके, हर कोई एक दूसरे की मदद कर सकता है।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करने को तैयार है, उन तक राइट लोगों तक पहुंचाना, उसका एक प्लेटफॉर्म हम बनाना चाहते हैं, जिसमें अल्लाह ने हम लोग को बहुत कामयाबी दी है अब तक माशाल्लाह। उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि इसको कम्युनिटी कंपटीशन बनाया जाए, कम्युनिटी नेटवर्क बनाया जाए, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तभी होगा जब सब लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, हर आदमी समझेगा कि ये मेरा कंपटीशन है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे गांव मोहल्ले के बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के बच्चों के लिए है। ये अगर हम कर पाए इंशाल्लाह, तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ अल्लाह की जात से कि इंशाल्लाह एक भी बच्चा जो है ना मिल्लत में आने वाले सालों में हम उसको तनहा नहीं छोड़ेंगे। अगर इफ ही हैज टैलेंट, सो वी विल प्रोवाइड हिम सपोर्ट इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इन कोशिशों को जो है खूब खूब कामयाब करे। और जो भी हम एफर्ट्स इसमें लगा रहे हैं, चाहे एएमपी के तौर पर लगा रहे हो, चाहे एग्जाम सेंटर के तौर पर लगा रहे हो, चाहे ऑब्जर्वर्स के तौर पर लगा रहे हो, चाहे जो लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हो उनके तौर पर, चाहे ट्रेनिंग पार्टनर्स के तौर पर, इन तमाम लोगों को, जो लोग इस पूरे इनिशिएटिव से जुड़े, खासतौर पर हमारी जो ऑफिस की टीम है, जो लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं इसको मैनेज करने में, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो हमारे मेंबर्स हैं मुल्क के कोने कोने में फैले हुए, उन सब लोगों को अल्लाह इस पूरे एक्टिविटी का, इस पूरी कोशिशों का अल्लाह खूब खूब अजर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। थैंक यू आमिर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। दैट वाज वेरी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर्स। काफी तफसील से आपने सब कुछ बयान कर दिया माशाल्लाह, और उम्मीद है सबको सारा डेटा मिल भी गया है। कुछ लोगों ने इस फाइल की कॉपी मांगी है कि अगर ये फाइल अगर उनको मिल जाए तो गाइडलाइंस दैट विल हेल्प देम अ लॉट। नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस इफ यू अलाउ। एनोनिमस अटेंडी लिख रहे हैं, आई एम फ्रॉम इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल लुधियाना, already selected as exam center. Filling the registration by our student does not show Ludhiana in city. Kindly sort this. फैसल भाई, एक जी कंफ्यूजन है लोगों को कि आप एग्जाम सेंटर बन गए हैं तो आपका नाम वहां पर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम सेंटर जो बन रहे हैं ये बैकएंड एक्टिविटी चल रही है, और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मोबाइल ऐप में, वो सिर्फ एग्जाम सेंटर के तौर पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनकी, प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट नंबर 1, प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट नंबर 2, ये वहां पर जो है सिलेक्ट करना है किस डिस्ट्रिक्ट में हो। सेंटर एलोकेशन जो है वो 10 नवंबर के बाद होगा। ठीक है, 10 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे तब तक रजिस्टर कर चुके होंगे उनको 10 और 11 नवंबर को दिया जाएगा, और जो बच्चे उसके बाद रजिस्टर कर रहे होंगे उनको इमीडिएट उनके हॉल टिकट में सेंटर अलोकेट होगा। एंड दिस विल है, ये जो है ना बैकएंड में होगा। बच्चों से जो हम एड्रेस पूछ रहे हैं, बच्चों से उनका ताल्लुका पूछ रहे हैं, पिन कोड पूछ रहे हैं, सेंटर से उनका ताल्लुका और पिन कोड पूछ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं, ये एक रैंडम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए बच्चों को सेंटर्स एलोकेट किए जाएंगे। तो उस ये टू मेक इट, वही वो जो आइडियल एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और डायनामिक बनाने का, उसकी वजह से ये हमने अरेंजमेंट किया है। तो अभी उसमें कोई जो है सेंटर नेम नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, कि जब बच्चे मोबाइल ऐप में ही इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन का एक अलग से फॉर्म है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, कि हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, इसलिए एज एन इंस्टीट्यूशन आपको रजिस्टर करना है। वो रजिस्ट्रेशन का मकसद ये है कि जब बच्चे अपना फॉर्म भरेंगे तो वो किस इंस्टीट्यूट से आते हैं वो ऑप्शन आ जाए। तो जब स्कूलों ने रजिस्टर किया होगा हमारे साथ तो उनका ऑप्शन दिखाई देगा, अदरवाइज बच्चों को अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब बच्चे अपने तौर पर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, कभी नाम गलत लिखते हैं, बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। उस वजह से किस इंस्टीट्यूशन से कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और उस वजह से जो इंस्टीट्यूशन को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट देना है, वो हम नहीं दे पाते। तो हम चाहते हैं कि आप आपके बच्चे रजिस्टर करें, उससे पहले आप एज एन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर कर लें, ताकि आपके बच्चों को फॉर्म फिल करने में आसानी हो। इससे ये भी फर्क पड़ेगा कि हम जो इंस्टीट्यूशन हमारे साथ रजिस्टर कर रही हैं उनको एक एमओयू सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं पार्टिसिपेशन का, आपको वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह, नंबर 1। नंबर 2, आप एक पैन इंडिया लेवल पर स्कूल और कॉलेजेस का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं इस पूरी एक्टिविटी के जरिए, आप उसका हिस्सा बनेंगे, जो ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा के लिए बहुत कारआमद होगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो वो इसके लिए आप सब लोग जो है ना कम से कम उसको पहले से एज एन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करें मोबाइल ऐप के जरिए। एग्जाम सेंटर्स ये पूरी अलग बात है, ये हम लोग बैकएंड में कर रहे हैं, आपसे 1-to-1 बात करके कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर का गूगल फॉर्म एक
डिफरेंट गूगल फॉर्म है जिसके बारे में मैं तस्करा कर रहा था, जिसमें एग्जाम सेंटर से रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल्स पूछी गई हैं. आई होप दिस विल क्लेरिफाई लॉट्स ऑफ डाउट ऑफ बाय द पीपल इंशाल्लाह. थैंक यू. एमडी जरगर साहब का सवाल है, इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ ग्रूमिंग द स्टूडेंट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन? अब हम लोग उसमें दो चीजें हैं कि नंबर वन, कि हम लोग के पास कोई ऐसी मतलब मास्टर क्लास जैसा तो कुछ नहीं है. हमने सिलेबस की डिटेल्स दी है, जो एनटीएससी का सिलेबस होता है बेसिकली सीईआरटी वगैरह से जुड़ा हुआ, या जो यूपीएससी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड. तो आप नॉर्मल जो एक ओलंपियाड्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ आएंगे. आपको अपने लेवल पर उनको तैयार कराना पड़ेगा. रही बात कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आंसर की, कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानकारी हासिल करनी है, उसके लिए हम लोग एक डेली हेल्पलाइन सेशन है जो हर दिन 5 बजे से 7 बजे तक शाम में इसी तरह जूम पे हम आखिरी दिन तक अवेलेबल रहेंगे. इट इज ऑलरेडी ऑन. जिस दिन लॉन्च किया था उसके अगले दिन से ही शुरू है. उसमें आकर किसी को कोई क्वेश्चन पेपर करना है, वो कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ मालूमात हासिल करनी है, तो वो आप हासिल कर सकते हैं. लेकिन बच्चों को प्रिपेयर करने का काम तो है, तो वो स्कूल्स और कॉलेजेस को ही करना पड़ेगा या बच्चों को खुद से करना पड़ेगा. अब्दुल कयूम अंसारी साहब के दो सवाल हैं, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे और सब्जेक्ट्स किस सब्जेक्ट्स के होंगे, और दूसरा सवाल है बैनर की डिटेल काइंडली सेंड करें और होर्डिंग्स के भी. दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ. बैनर की डिजाइन हम लोग भेजेंगे इंशाल्लाह. और पहला सवाल जो है फैसल भाई, आप चाहे तो आंसर कर सकते हैं. सिलेबस जो है हमने मेंशन किया हुआ है वेबसाइट पर भी और अपने मोबाइल ऐप पर भी. आप उसको पढ़ लीजिए. दो सेक्शन में जो है स्कूल के बच्चों के लिए दो सेक्शन में क्वेश्चन होंगे. एक जो है एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा जो होता है एसएटी कहते हैं जिसे, स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट. ठीक है. तो स्कॉलिस्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो है ना लॉजिक, रीजनिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. और जो एसएटी है उसमें 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंसेस, करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज, इस तरीके से जो सेक्शंस हैं हर सेक्शन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर्स होंगे इंशाल्लाह. हमने इन तमाम क्वेश्चन पेपर्स के बहुत सारे मॉक क्वेश्चन पेपर भी मोबाइल में अवेलेबल हैं, मोबाइल ऐप में. आप वहां पर जाकर मॉक क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं. आपको सफिशिएंट अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं. शबाना मैडम पूछ रही हैं कि 25 तारीख को राजस्थान में इलेक्शन आ रहा है. जी, हम लोग को मालूम पड़ा है. तो राजस्थान के लिए वी विल डू समथिंग एल्स इंशाल्लाह. पूरे इंडिया में बाकी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं. हम वी वर वेरी वरीड. इलेक्शन अनाउंस होने से पहले तो हम लोग बहुत फिक्रमंद थे. जब पहली बार अनाउंस हुआ तो हम बहुत खुश हो गए कि चलिए कहीं पर भी डेट क्लैश नहीं हो रही है. लेकिन राजस्थान की डेट्स उन्होंने चेंज कर दी है. उसको अब 25 को कर दिया. कल ही उसका अनाउंसमेंट हुआ. हम हमने प्रॉपरली नोटिस लिया हुआ है इसका. राजस्थान के लिए हम नई डेट्स अनाउंस करेंगे. राजस्थान के तौर पर, खास तौर पर राजस्थान के सेंटर्स पे अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह. इरफान कादिवर साहब लिखते हैं कि इन केस आधार कार्ड मैच नहीं होता है विद हॉल टिकट, व्हाट शुड वी डू? सेकंड सवाल है, लास्ट एंट्री टाइम इंक्रीज अप टू 11 एज पर बोर्ड एग्जाम. ये अब सेकंड सवाल दोबारा से पूछे भाई. पहला सवाल था कि अगर आधार और हॉल टिकट अगर मैच नहीं हुआ तो क्या करें, और दूसरा सवाल तो मुझे भी क्लियर नहीं है, लास्ट एंट्री टाइम इंक्रीज अप टू 11 एज पर बोर्ड एग्जाम. अच्छा, मतलब एग्जाम में दाखिल होने की मैं समझ आखिरी वक्त. मैं समझ गया दोनों बातें. पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आधार कार्ड का नंबर हॉल टिकट के आधार कार्ड नंबर से मैच नहीं करता है तो दैट स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन. उनको आपको बाहर खींचना होगा. अब ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, उनके टीचर्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म प्रॉपरली फिल करें. अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक गवर्नमेंट के किसी एग्जाम में होगी, नीट के पेपर में होगी, आईआईटी के पेपर में होगी, तो क्या वो अलाउ किए जाते हैं? नहीं किए जाते. तो यहाँ भी अलाउ नहीं किया जाएगा. ये प्रैक्टिस है, समझ लीजिए ट्रायल सेशन है. यहाँ बच्चे सीखेंगे तो आगे इंशाल्लाह बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे. नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर था ये. नंबर 2, हम एंट्री टाइम को भी 11 बजे तक नहीं ले जा सकते. 10:30 विल बी द लास्ट टाइम टू एंटर इन द एग्जाम हॉल. ये कोई कभी भी आए, कैसे भी आए, अलाउ किया जाए, ऐसे नहीं हो सकता. 10:30 से 11 के बीच में हमारे इन्विजिलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर करने वाले हैं, ओएमआर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे उस पर अपनी डिटेल्स पहले से लिख दें. ये सारा काम 10:30 से 11 के दरमियान होना है. इसलिए बच्चों को 10:30 से पहले आकर अपने सीट पर बैठ जाना है. तो नो मोर कंडीशनिंग इन दैट एज वेल.
ये सारे एग्जामिनेशन अगर आप देखें, जितने एग्जामिनेशन होते हैं सब में इसी तरह का टाइम टेबल फिक्स किया जाता है। उसके बाद नो एंट्री विल बी अलाउड, स्टूडेंट शुड रीच बिफोर टाइम। थैंक यू। मोहम्मद मंसूर साहब का एक सवाल आ रहा है, इज दिस एग्जाम फॉर ऑल रिलीजन? जी, ये एग्जाम सबके लिए ओपन है, सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी इसमें एग्जाम में अपीयर हो सकता है। आप हमारे पिछले सालों के एग्जामिनेशन की अगर टॉपर्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। इरफान साहब का एक सवाल आगे आ गया कि पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया था तो क्या नया रजिस्ट्रेशन इस साल होगा? मेरा ख्याल है कि वो एज एन इंस्टीट्यूशन इस सवाल पूछ रहे होंगे। यस, दिस ईयर वी यू हैव टू डू री रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 5 मिनट का काम है। परेशान मत होइए उस वजह से। हम इस बार के रजिस्ट्रेशन को अगली बार इंशाल्लाह यूज करेंगे, हमारी आईटी टीम इज वर्किंग ऑन दैट। लेकिन पिछले बार का रजिस्ट्रेशन इस बार यूज नहीं कर पाएंगे। हमारे पास डेटा तो मौजूद है, हम आप तक उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, लेकिन आप इस बार के लिए नया रजिस्ट्रेशन करिए प्लीज। रफी साहब, इस सवाल का जवाब पहले दिया जा चुका है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इट इज ओपन टू ऑल कम्युनिटीज। DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, स्टूडेंट कैन कंसिडर फॉर दिस एग्जाम। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप सिलेबस, एलिजिबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस आप डेली हेल्पलाइन में पूछ लीजिए, आप वेबसाइट पर पढ़ लीजिए। आज के क्वेश्चन, लेट्स कीप दिस वेरी स्पेसिफिक टू एग्जाम सेंटर्स, कि एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट कैसे होगा। हम डेली हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, मोबाइल पर पूरी डिटेल्स वेबसाइट पर मौजूद है, प्लीज पढ़िए उसको। एलिजिबिलिटी पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, सारी चीजें वहां पढ़िए इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन जो था मैं जिसको आंसर करना चाह रहा था, ऊपर किसी ने पूछा हम कब जान सकेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लिया गया है ऑफलाइन एग्जाम सेंटर के लिए। भाई साहब, आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया, आपको गूगल फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं, आपके साथ जो है बातचीत चल रही है, मतलब आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अदरवाइज हम इस लेवल पर आपको इस ओरिएंटेशन सेशन में बुलाया गया है। ये कोई मार्केटिंग सेशन नहीं है कि आपको मार्केटिंग करके उस एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। हमने ये मान लिया है कि आप एग्जाम सेंटर है, ये डिटेलिंग है, ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग सेशन है। तो आप जितने सारे लोगों से हमारी टीम ने राब्ता किया है, कंफर्म किया है, दे ऑल आर फाइनलाइज। हम आपको एक ऑफिशियल लेटर सब लोगों को इंशाल्लाह एएमपी की बिहाफ पे एक बहुत जल्द भेज देंगे। वी आर जस्ट वेटिंग टू कंप्लीट ऑल द सेंटर्स, उनको भेज दिया जाएगा। आप सेंटर बन गए हैं, अब आपको कोई बदल नहीं सकता इंशाल्लाह। किसी ने पूछा है व्हेन विल दी हार्ड कॉपीज ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी रिसीव टू द सेंटर। मैंने बहुत स्पेसिफिक कहा अपने सेशन में, 22 नवंबर तक जो है सारे क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट हर सेंटर तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सो नीड नॉट टू वरी ऑन दिस इंशाल्लाह। 22 नवंबर विल बी द लास्ट डेट। कुछ को 21 को और 20 को भी मिल सकते हैं, सील्ड एनवलप में होंगे। वो सील जो है वो एग्जाम डे के दिन सारे ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में और 2 स्टूडेंट्स की मौजूदगी में खोली जाए अंदर विथ वीडियोग्राफी। अब्दुल कयूम अंसारी साहब OMR शीट का पूछ रहे हैं, हु विल प्रोवाइड द OMR शीट? हम प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ओएमआर शीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेम ओएमआर शीट सारे बच्चों के लिए यूज होगी। हर बच्चे अपने हिसाब से अपनी क्लास, कैटेगरी, अपना हॉल टिकट नंबर, ये सारी चीजें उसमें मार्क करेंगे इंशाल्लाह। बैनर्स की जो बात पूछ रहे हैं लोग, हम बैनर डिजाइन 2 दिन में, 3 दिन में आप तक सब लोगों तक पहुंचा देंगे। आप उसको प्रिंट कराइएगा। एनी एज लिमिट? एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिए, आप वेबसाइट पे दी हुई है। DIO सर विल परमिटेड और नॉट? व्हाट? एग्जाम सेंटर बनाने के लिए DIOS ऑफिस से परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? DIOS ऑफिस? हाँ, डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन ऑफिसर होते हैं जो सरकारी की मत बनाइए, अगर आप सरकारी उनके स्कूल अंडर होते काम हैं, करते हैं। अगर सरकारी आप स्कूल उनके लिए चाहिए होता है। अगर आप किसी सरकारी और स्कूल है, अगर आप उनके अंडर काम करते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आप सेंटर मत बनाइए। आप हमको हेल्प करिए किसी दूसरी प्राइवेट स्कूल को सेंटर बनाने में, कोई प्राइवेट कॉलेज को सेंटर बनाने में मदद करें प्लीज। कामरान साहब, आपका सवाल क्लियर नहीं है। आई विल विजिट अदर कॉलेजेस और स्कूल, व्हाट वी हैव टू शो? मतलब यू विल विजिट एज अ ऑब्जर्वर और? नो नो, ये प्रमोशन के लिए पूछ रहे हैं शायद, मेरा ऐसा ख्याल है। तो हम जो है, जो इसका अनाउंसमेंट ड्राफ्ट है, जो इसका अनाउंसमेंट पोस्टर है, वो आप तक ऑलरेडी पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचा है तो वो भी हम अभी ग्रुप में शेयर करते हैं। हमने इंग्लिश ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, इसका हिंदी और इसका उर्दू पोस्टर और उसका ड्राफ्ट भी भेजा जाएगा। आप वो ले जाकर लोगों को दिखा सकते हैं। एक PDF डॉक्यूमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, वो आप लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं।
देखिए पूरा जो है ना लो कॉस्ट मॉडल है जिस पर ये पूरा कंपटीशन हम चलाते हैं, ये लोगों के एफर्ट्स के जरिए चलने वाला कंपटीशन है। तो ये जो आज डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, उसके जरिए हम लोगों को मैक्सिमम जगहों पर पहुंचना है। तो हम इनफैक्ट हमारे जो ब्राउचर्स हैं उसको भी प्रिंट नहीं करते, कभी भी नहीं करते, कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं करते, नॉट ओनली एनटीएस, दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी नहीं करते। वो जो पीडीएफ हमने बनाई है वो आप स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉलेजेस तक शेयर करें, आप जाएं तो भी वही दिखाकर बात करें लोगों से इंशाल्लाह, और उससे काम होगा इंशाल्लाह। कॉलेजेस और स्कूल जब पार्टिसिपेट करना होगा उनको, तो वो उनके पास पीडीएफ है, दे कैन देमसेल्व्स टेक द फोटोग्राफ और दे कैन देमसेल्व्स डिस्प्ले दैट ऑन देयर नोटिस बोर्ड। तो जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, डिस्प्ले पे लगाएं, बच्चों के साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करें इंशाल्लाह। दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज थिंग्स इंशाल्लाह। सूफी मैम ने लिंक शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच। वेस्ट बंगाल में एग्जाम होगा तो बंगाली वर्जन में एग्जाम होगा क्या? अब तक हमने जो है ना बंगाली वर्जन का डिसीजन नहीं लिया है। हमारी बात वहां पर दो अलामीन जो मिशन है, वो हमारे क्लोज पार्टनर्स हैं, जीडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे साथ राब्ते में है। अगर जरूरत हुई तो वो अनाउंस किया जाएगा इंशाल्लाह। जूनियर कॉलेज एग्जाम इज कंडक्टेड इन गुजराती लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क। रॉन्ग। आमिर भाई, गुजराती लैंग्वेज में कौन कौन सी कैटेगरी में पेपर मिलेगा? क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछिए। गुजराती लैंग्वेज में कौन कौन सी स्कूल कैटेगरी के में? लिए, सिर्फ स्कूल के लिए 3 लैंग्वेज के अलावा गुजराती भी ऐड की गई है, तो चौथी लैंग्वेज हो गई वो। अदरवाइज जूनियर कॉलेज इंग्लिश होगा, सीनियर कॉलेज इंग्लिश होगा। स्कूल के लिए, स्कूल में 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स होंगे, 8वीं के लिए अलग क्वेश्चन पेपर, 9वीं के लिए अलग क्वेश्चन पेपर, 10वीं के लिए अलग क्वेश्चन पेपर। ये तीनों क्वेश्चन पेपर 4 लैंग्वेजेस में होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड गुजराती। तस्लीमा नसरीन पूछ रही, एप्लीकेशन इज बीइंग अपडेटेड डेली बट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक आप दिन अपना और रुक डिवाइस जाइए, चेंज करके मतलब वो देखें। एक दिन और रुक जाइए फैसल भाई, एवरीथिंग इज इज बीइंग स्मूथ अपडेटेड अल्हम्दुलिल्लाह, मीटिंग आफ्टर। रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन देयर वर सम स्मॉल इश्यूज व्हिच आर गेटिंग सॉल्व टुमारो इंशाल्लाह। नेम ऑफ द सेंटर्स इन आंध्र प्रदेश, शकीरा मैडम शायद है वो पूछ रही हैं। तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया आंध्र प्रदेश में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स और कवर करना चाहते हैं। इफ यू कैन हेल्प अस इन कवरिंग दोज डिस्ट्रिक्ट्स, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। आप ग्रुप में लिख लीजिएगा, एडमिन्स को, या ग्रुप में लिख दीजिएगा कि यू कैन हेल्प इन आंध्र प्रदेश इंशाल्लाह, शाकिरा मैडम। उसी तरह कामरान जलील साहब गोड्डा झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में भी हम लोगों ने तकरीबन 5 सेंटर्स ऑलरेडी फाइनल किए हैं, बट झारखंड में हम तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाह रहे हैं सेंटर्स, जैसे गोड्डा है, गिरिडीह है, साहिबगंज है, इन तरह की तमाम जो पाकुर है, ये सारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाह रहे हैं। सो अगर वहाँ कोई जरूरत होगी, कामरान साहब आपकी हेल्प की जरूरत होगी, आप जरूर हेल्प करिएगा प्लीज। और ये सारी लिस्ट भी जो है वो हम लोग एटलीस्ट अपने इंटरनल टीम के साथ शेयर कर देंगे कि कहाँ कौन कौन से सेंटर्स हैं। सो 2 दिन में ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आसिया मैडम से कि 2 दिन बाद तमाम सेंटर्स को पूरी लिस्ट जो है ग्रुप में शेयर की जाए कि ये एग्जाम सेंटर्स हैं। सो फैसल भाई, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द If they know any school, good colleges, they can connect us with that school and college for becoming an exam center, inshallah. किसी भी सिटी में, है ना आमिर भाई? अभी 2-3 दिन तो ये ऑप्शन सबको रह सकता है। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था, ये दोनों ऑप्शन तो जैसे शकीरा मैम इज हेल्पिंग इन आंध्र प्रदेश, कामरान साहब झारखंड में, तो अदर मेंबर्स कैन आल्सो रेफर एंड रिकमेंड एंड कनेक्ट फॉर एग्जाम सेंटर्स, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्कुल अक्रॉस बिल्कुल इंडिया, बिल्कुल। इंशाल्लाह। एक और मैं बात ऐड कर दूं फैसल भाई, वो ये है कि अगर हम लोगों को किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी तालुका से रजिस्ट्रेशन हैवी हुआ और अगर हमारा सेंटर वहां नहीं है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वहां सेंटर बनाए। इंशाल्लाह वी कैन रीच आउट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी तालुका ऑफ इंडिया। हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है, हम कर ले जाएंगे इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन अगर आता है तो वी विल मैनेज इंशाल्लाह, अदरवाइज जो हमारे हेडक्वार्टर्स के सेंटर है, स्टूडेंट्स विल हैव टू कम टू दोज सेंटर्स। सूफी मैम, आपने शायद एलिजिबिलिटी पोस्ट कर दी है, बाकी क्वेश्चंस तो नहीं है। वी कैन कंक्लूड। ये मीटिंग्स हमारी रेगुलर रूटीन पे हो सकती हैं, मतलब ब्रीफिंग या क्वेश्चन आंसर्स के लिए एग्जाम सेंटर्स के?
जैसे आज ये सेकेंड मीटिंग है, पिछली मीटिंग 5 अक्टूबर को हुई थी। कल एक मीटिंग अब आगे भी दोबारा करेंगे, मगर सेम रिपीटेशन के लिए अब नहीं करेंगे। ये वीडियो लिंक शेयर करते हैं लोगों के साथ। 2 बार हमने लोगों को बुलाया, अब कोई दोनों बार भी मिस करेगा तो कितनी बार करेंगे उनके लिए मीटिंग। तो हम इसकी वीडियो लिंक शेयर करेंगे लोगों के साथ, प्लस एडिशनल जब इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत होगी तो वो चीजें इंशाल्लाह मैनेज की जाएंगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। 2-3 दिन में कोशिश करें कि इसकी आज की मीटिंग की वीडियो भी अवेलेबल हो, सो दैट लोग वीडियो देख सकें इंशाल्लाह। सो विल ट्राई टू मैनेज लाइकवाइज इंशाल्लाह। अगर सादिक किसी कोई भी चौधरी साहब, क्वेश्चन है तो हमारे जो सारे लोग काम मतलब जो है ना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आसिया इमाम, नीलोफर, मौलाना हामिद रजा साहब, देन वी हैव जैनब खान फॉर साउथ, फिर वी हैव समीरा, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह इनसे राब्ता लोग कर सकते हैं, आपसे और मुझसे भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं ग्रुप में। सादिक चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं और अंसारुद्दीन साहब त्रिपुरा के बारे में पूछ रहे हैं। दे कैन हेल्प इन दोज स्टेट्स इंशाल्लाह ताला। तो सादिक भाई, यूपी में ऑलमोस्ट सारी, यानी आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स वी विल मेक सेंटर्स इन एटलीस्ट 65 डिस्ट्रिक्ट्स, मिनिमम 65 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स होंगे, जिसमें से ऑलरेडी 50+ सेंटर्स बन चुके हैं। कुछ एक कंफर्मेशन स्टेज पे है, वो लिस्ट शेयर की जाएगी। अगर कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में आप मदद कर सकते हैं तो आप जरूर लिखिए। त्रिपुरा, अंसार भाई हमारे, त्रिपुरा सेंटर बनाना है। त्रिपुरा में अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मणिपुर सेंटर फाइनल हुआ है और आसाम के सेंटर्स फाइनल हुए हैं। बकिया जगहों पर जो है बनाना बाकी, मिजोरम भी शायद हो गया है, बाकी जगहों पर बनाना बाकी है। तो आप प्लीज हेल्प अस विथ द अदर स्टेट्स, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, ये सारी जगहों पर जो है आप प्लीज हेल्प करें। फैसल भाई, That's all the question we have today. प्रतापगढ़ से एक सवाल था, तो जलील साहब हैं, अपने इंजीनियर एमपी मेंबर भी हैं और इनका स्कूल भी है, इनका एमडीबी स्कूल है, जिनके पोस्टर्स आए थे आपके, इन्होंने नोटिस बोर्ड पे अच्छा लगा दिए थे। प्रतापगढ़, माशाल्लाह। जी जी जी, आज हमारे यहाँ से अनाउंसमेंट भी हुआ है शायद ऑफिस की तरफ से। जी जी जी, तो उन्होंने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे पोस्टर्स लगा के सोशल मीडिया पे भी डाल दिया था। माशाल्लाह ये इंजीनियर मोहम्मद जलील साहब है, वेरी एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग इन यूपी, अभी माशाल्लाह प्रतापगढ़ में सेटल्ड माशाल्लाह। है फॉर हिज स्कूल। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, एंड इंशाल्लाह विल बी मीटिंग अगेन एंड कनेक्टिंग अगेन। अगर किसी और को सवाल हो तो रोज 5 से 6 एक सवाल आ रहा है जाते जाते। रायपुर, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, इफ यू नीड सेंटर, सैयद साहब is offering centers in Chhattisgarh, Raipur, बिहाली, अंबिकापुर। सैयद साहब अपना नंबर ड्रॉप कर दें अगर आप, तो we'll get back to you इंशाल्लाह, and you can surely help us to देखिए connect more माशाल्लाह, school colleges. हम लोगों को रायपुर में जरूरत, छत्तीसगढ़ में हमने जो है ना बिलासपुर और एक दुर्ग, ये 2 जगहों पर सेंटर फाइनल हो चुके हैं। रायपुर वॉज पेंडिंग। तो अखिल भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। अल्लाह देखिए कैसे एक दूसरे की मदद के लिए लोगों को भेजता है। तो इट विल बी वेरी नाइस इफ वी गेट सेंटर एट इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स। शकीरा मैम का सवाल आ गया कि नेम ऑफ द सेंटर, देन वी कैन एनकरेज स्टूडेंट्स इन आवर सराउंडिंग्स इन दैट मंडल। आसिया मैडम से रिक्वेस्ट है कि जो है सेंटर लिस्ट सबके साथ शेयर करें। और आसिया मैडम से और रिक्वेस्ट ये है कि कोई क्वेश्चन बचा हो तो बताइए, हम लोग आंसर कर दें। अच्छा मैम, ये नंबर रजिस्टर कर लें सैयद साहब का, 89। जी जी, वो उन्होंने ले लिया होगा, बोलने में कम यकीन है, काम ज्यादा करते हैं ये लोग। लेकिन अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। फैसल भाई क्लोज करते हैं। ओके देन, वी आर डन विद दैट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आपने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त दिया और इस कोशिश में आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और इंशाल्लाह सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।